Do you find paraphrasing the question difficult? Or while speaking in the IELTS exam, you find difficult to find the words? Then this video is for you. Hi friends, welcome to my YouTube channel, Break the Knowledge Barrier. I am Naprit Kaur. I have been uploading various videos on preparation of the IELTS examination. In this today's video, I would be giving you details about a few words and the vocabulary for those words and how to use them. I'll explain you the usage of the words in the noun form as well as in the verb form and the different synonyms used for that particular words. So stay tuned and watch the video till the end. So the first word in the vocabulary section is school. School is a very common word which is used in various IELTS writings of different formats in task 1, task 2 as well, and it is also used in the speaking. So if we use the word school in the noun form, this is the noun form that we are using, and if we use it in the noun form, then what would be the different usages that can be done? First of all, we'll discuss about the synonyms that are used in the noun form. In the noun form, the synonyms that are used are educational institutions, center of learning, academy, or alma mater. And the usage for the school in this context, like using in context of educational institutions, the usage would be like the school caters for school with learning difficulties. So यहाँ पर हम स्कूल को एक नाउन फॉर्म में यूज कर रहे हैं जहाँ पर हम इसका मीनिंग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के वे से यूज कर रहे हैं. अगर हम स्कूल को एक इंस्टीट्यूशनल लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई एकेडमी या कोई भी सेंटर या जहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं कोई इंस्टीट्यूशन, उस फॉर्म में अगर यूज करते हैं, देन हाउ डू वी यूज इट? द स्कूल केटर्स, वहाँ पे स्कूल यहाँ आएगा, द स्कूल केटर्स फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि वो वाला जो स्कूल है वो केटर्स मीन्स उन चीज़ों को डील करता है, उन स्टूडेंट्स को डील करता है विद लर्निंग डिफिकल्टीज जिनको लर्निंग में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, उन स्टूडेंट्स को ये वाला स्कूल डील करता है. So, उस केस में we use this in the noun form like an educational institution. The second form of usage, the second synonym where we use it in the noun form, like in the department, in a faculty or a division, when we use school in these contexts, for example of a university or a faculty of a university, like the usage here, you can just look at the example. यहाँ पे हमने यूसेज क्या किया हुआ? द यूनिवर्सिटीज स्कूल ऑफ इंग्लिश. अभी ये तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी का कोई स्कूल है इंग्लिश का, ऐसा नहीं है. दिस मीन्स यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का डिपार्टमेंट या उसका डिवीजन या फैकल्टी. सो उन केस में, इस केस में ऑल्सो वी यूज द वर्ड स्कूल. सो दिस वर्ड कैन बी यूज्ड इन दिस फॉर्म ऑल्सो कि यूनिवर्सिटीज स्कूल ऑफ इंग्लिश और द यूनिवर्सिटीज स्कूल, मतलब उसका फैकल्टी जो है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्कूल. अगर कोई डिपार्टमेंट है, कोई कुछ है, तो उसको भी हम एज ए स्कूल यूज कर सकते हैं. देन कम्स द थर्ड, थिंकिंग या किसी की ओपिनियन या किसी का बिलीफ या अप्रोच, कुछ इस टाइप की चीज के बारे में हमने मेंशन करना हो, तो then also we use the word school in that ways. जैसे way of thinking में यहाँ पे इन्होंने क्या कैसे कैसे हमने इसमें लिखा है यूसेज हमने, मैं इसकी जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द यूसेज. द स्कूल ऑफ लिंग्विस्ट्स एसोसिएटेड विद हिज आइडियाज. कोई भी स्कूल जो उस किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोल रहा होगा कि वो दैट इज एसोसिएटेड विद द लिंग्विस्टिक
with the ideas of that part. जैसे कोई पेंटर हो गया या कोई हो गया, उसका जो उससे जो रिलेटेड कोई स्कूल है, उसकी थिंकिंग के रिलेटेड उसका जो वो अप्रोच है टीच करने की, या उसका मेथड है या स्टाइल है, अगर वो हम उस चीज को मेंशन करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, अप्रोच है, मेथड है, स्टाइल है, उस केस को यूज करते हैं, देन द डिफरेंट सिनोनिम्स दैट वी कैन यूज हियर इज वे ऑफ थिंकिंग, स्कूल ऑफ थॉट, persuasion, creed, credo, doctrine, belief, faith, outlook, opinion, point of view, approach, method, style. These are so many synonyms that can be used in this type of a context. अगर हमारा context है कि कोई हम किसी particular किसी school of thought के बारे में बात कर रहे हैं, then we can use these words, these synonyms in case of school. अब यहाँ पे हमने डिफरेंट देखा है, ऊपर हमने देखा है कि किस टाइप का स्कूल की यूसेज कहाँ कहाँ पे हुई है स्कूल वर्ड की, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो कैसे यूज होगा, और अगर दूसरा हम यूज करते हैं किसी को डिपार्टमेंट के रिलेटेड, देन हाउ दिस इज यूज्ड. और थर्ड मेथड है इफ वी आर यूजिंग फॉर एक्सप्लेनिंग द अप्रोच और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ थिंकिंग. कोई पेंटर है या कोई राइटर है, राइटर की कोई थिंकिंग है, राइटर जिस टाइप के लिखता था, तो उस डिपार्टमेंट सपोज एक उस थिंकिंग को लेकर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो देन वी कैन से दैट द स्कूल ऑफ लिंग्विस्ट्स एसोसिएट. लिंग्विस्ट्स मीन्स जो उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं. यहाँ पर लिंग्विस्ट्स का मीनिंग हो गया जो उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद हिज आइडियाज. दिस मीन्स दिस. Right? So this is the form, a noun form of using the school. अब हम आते हैं next usage in the form of verb. School को ही हम in the form of verb कैसे use कर सकते हैं. अब school को use करने के लिए अब verb form में use करने के लिए we can use it in a different form. Like how do we use it? To educate, to teach, to instruct. उस वे में अगर हम इसको verb form में use करते हैं, like the usage is he was born in India and schooled in London. कि वो born तो इंडिया में हुआ था लेकिन उसकी schooling पढ़ा कहाँ पे था? लंदन में. So ये अगर हम education के context में use करते हैं, दिस इज नॉट द नाउन फॉर्म. यहाँ पे हम वर्ब को यूज कर रहे हैं कि वो वहां पे पढ़ा था. पढ़ा इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. तो उस पढ़ने को लेकर स्कूल्ड, यहाँ पे दिस इज स्कूल्ड, दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर. जहाँ पे कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई टीच कर रहा है, तो उस केस में वी यूज दिस वर्ड एज स्कूल. राइट? स्कूल इन लंदन. So इसके 3 synonyms है, educate, teach and instruct. Then second usage in the form of verb is अगर हम कोई ट्रेनिंग की बात करते हैं, कोई टीचिंग की, कोई ट्यूटर की, कोई इस टाइप की अगर हम बात करते हैं, then we use it. जैसे यहाँ पे usage है she schooled him in martial art. That means उसने उसको मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग दी. किसी को भी हमने किसी चीज में ट्रेनिंग दें या किसी चीज के उसको स्टडी करवाएं, सो दैट इज इन दैट वेज दैट इज ऑल्सो अ वर्ब फॉर्म. उसमें हम यू कैन यूज दिस वर्ड एज स्कूल एंड दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड. जैसे ट्रेन, टीच, ट्यूटर, दीज आर द डिफरेंट वर्ब्स विच वी कैन यूज हियर. ट्रेन, टीच, ट्यूटर, कोच, इंस्ट्रक्ट, upskill, drill, discipline, direct, guide, prepare, groom, mold, shape, form. These are the different words which can be used as a verb form of school. So please note down all these things. पहले वाले में हमने noun form की usage बताई है, different words हमने उसमें बताए हैं, synonyms बताए हैं पहली slide में, and in this slide I am telling you about how to use it in the verb form. राइट? तो वर्ब फॉर्म के लिए हमारे पास इतने सारे वर्ड्स आ गए. अब आपको बहुत सारे वर्ड्स ये मिल जाएंगे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करने के लिए कि स्कूल को हम
कैसे यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट वर्ड्स, कैसे सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं फॉर पैराफ्रेजिंग अ राइटिंग क्वेश्चन और while speaking, right? Now we come to the next word. जो next word हम discuss करेंगे that is parent. Parent भी एक बहुत ही common word है जो use होता है writings में and as well as in the speakings. अब what is the meaning of parent? Parent का meaning सभी को पता होगा, सभी के parents होते हैं, सबको पता ही है कि parent में हम पेरेंट्स हम किन को कहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं, हमारे माँ बाप को, मदर फादर, उनको हम पेरेंट्स बोलते हैं, राइट? तो उनके कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं पेरेंट्स जब दोनों की बात हो रही हो उस केस में, एंड उसमें हम यूज करते हैं वर्ड पेरेंट्स. अब पेरेंट्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं. इफ इट इज यूज्ड इन द नाउन फॉर्म, उसमें मदर फादर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मदर फादर को हम एज ए पेरेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक वी कैन से बायोलॉजिकल पेरेंट्स, बर्थ पेरेंट, अडॉप्टिव फादर. सपोज दिस इज अबाउट अ फादर. अडॉप्टिव फादर मीन्स फादर जिसने अडॉप्ट किया हो किसी को. अडॉप्टिव मदर, मदर ने अडॉप्ट किया हो. अब बायोलॉजिकल पेरेंट एंड बर्थ पेरेंट. बायोलॉजिकल पेरेंट आर दोस्त जिन्होंने आपको जन्म दिया है, एंड बर्थ पेरेंट आर ऑल्सो द सेम, जिन्होंने आपको जन्म दिया है. सो बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर दोस्त जो हमें जन्म देते हैं, एंड अडॉप्टिव आर दोस्त जो किसी को अडॉप्ट करते हैं, किसी बच्चे को, नॉट द पर्सन जिन्होंने उनको जन्म दिया बट अडॉप्ट करते हैं. सरोगेट मदर. व्हाट इज अ सरोगेट मदर? सरोगेट मदर आजकल बहुत ट्रेंड है, काफी कॉमन हो रहा है, जहाँ पे जो मदर है व्हेन शी इज नॉट एबल टू कंसीव, तो कुछ ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से उसको मदर बनने का मौका मिल जाता है. शी इज नॉट एक्चुअली द मदर, बट वो सरोगेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू वो मदर बनती है. सो दैट इज कॉल्ड अ सरोगेट मदर. फॉस्टर पेरेंट. फॉस्टर पेरेंट, फॉस्टर मदर, फॉस्टर जो किसी को पालन पोषण करते हैं, जिसके रिलेटेड किसी बंदे का पूरा ध्यान रखते हैं, दोज आर द फॉस्टर पेरेंट्स. फॉस्टर मदर, फॉस्टर फादर और फॉस्टर पेरेंट. पेरेंट इज यूज्ड अगर दोनों मदर फादर हो, एंड इफ ओनली मदर देन विल यूज फॉस्टर मदर, और ओनली फादर देन फॉस्टर फादर. देन नेक्स्ट इज स्टेप पेरेंट. ये तो आई थिंक काफी लोगों को पता ही होगा. स्टेप क्या होते हैं? स्टेप पेरेंट्स होते हैं, स्टेप मदर, स्टेप फादर, जिनके जैसे किसी वजह से भी उनकी अपने मदर या फादर नहीं होते, बट दूसरे मदर फादर होते हैं उनके. सपोज मदर, मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरे फादर ने किसी और से मैरिज कर ली, तो वो जो होगी दैट विल बी माई स्टेप मदर. सिमिलरली स्टेप फादर और गार्डियन. नाउ द गार्डियन इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ यू. दिस कैन बी योर पेरेंट्स, दिस कैन बी your any person who has been associated as a guardian. So ये मदर, ये पेरेंट्स की जगह पे यूज होता है, एंड मोस्टली दिस इज यूज्ड व्हेन we are talking about who the person is who is taking care of us in the schooling matters, or in while taking care of us when we are young. ठीक है? So guardian is those. फिर भी वो पेरेंट्स के लिए यूज हो सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. सिंगल पेरेंट. सिंगल पेरेंट इज ऑब्वियस, जो नाम से ही हमें पता चलता है कि सिंगल पेरेंट हो, आइदर सिंगल मदर या सिंगल फादर, जब कोई हो तो दैट इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट. सिंगल पेरेंट को ही हम लोन पेरेंट भी यूज कर सकते हैं, मीन्स अकेले पेरेंट. को पेरेंट. को पेरेंट मीन्स को इज द वर्ड. अब यहां से आपको पता लग जाएगा, को मीन्स दो जने मिलकर, that is co-parent. Here the usage of the parent in the noun form as mother and father is her parents taught her to be independent. अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स को हमने यूज किया है मदर फादर के कॉन्टेक्स्ट में. her parents taught her to be independent. उस केस में we are using this word as mother, as parents. Now the second form, नाउन फॉर्म में सेकेंड तरीके से हम यूज कर सकते हैं फॉर सोर्स.
source, origin, genesis, originator, root, fountain, many ancestors. Like जो हम पुरानी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उसमें वी कैन यूज़ द पेरेंट. और अगर किसी ने किसी चीज़ को प्रमोट किया है देन लाइक इन द यूसेज हियर व्हाट वी आर सेइंग इज ही इज द पेरेंट ऑफ रॉक एंड रोल. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ही इज द पेरेंट ऑफ रॉक एंड रोल. व्हाट डज दैट मीन कि उसने रॉक एंड रोल को जो म्यूजिक है उसको उसने जन्म दिया, उसने उसको प्रमोट किया आगे. जन्म नॉट बायोलॉजिकल जन्म बट उसने उसको डेवलप किया, उसने उसको इन्वेंट किया उस टाइप की म्यूजिक को. सो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द पेरेंट ऑफ रॉक एंड रोल. उस केस में हम वर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं, सोर्स, लाइक ही इज द पर्सन हु सोर्स दिस. ओरिजिन रॉक एंड रोल की कहाँ से हुई, वी कैन टेल सम. अगर कोई नाम आपको पता है तो यू कैन यूज दैट. द ओरिजिन ऑफ some kind of music or some kind of thing. कुछ भी किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं. The origin of human beings was in so and so century. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. That is also a kind of parents. Genesis also is a word used for parents where we are talking about the origin. उस केस में ये यूज होता है. नाउ टेक केयर कि हम कैसे कैसे, ये नहीं कि हम मदर फादर की जगह पे जेनेसिस यूज कर देंगे, वो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जहां पे हम यूज कर रहे हैं कोई ओरिजिन की बात कर रहे हैं, उस केस में वी कैन यूज दीज वर्ड्स. ठीक है. ओरिजिनेटर, रूट, फाउंटेन, कॉज, ऑथर. द ऑथर ऑफ दिस बुक इज द पेरेंट ऑफ दिस बुक इज, ऐसे भी वी कैन रिप्रेजेंट. द आर्किटेक्ट ऑफ, forerunner, predecessor, antecedent, ancestors. So these are the words which can be used for parents but in different contexts. अब यहाँ पे parents को noun form में हमने दो तरीके से यूज किया. एक तो मदर फादर जो हमारे हैं नॉर्मली उनको हम पेरेंट्स यूज करते हैं, एंड सेकेंड फॉर्म है जहाँ पे हम किसी ओरिजिन की बात करते हैं, किसी सोर्स की बात करते हैं. तो उस केस में कैसे हम पेरेंट वर्ड को यूज कर सकते हैं और उसकी जगह पे कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ पेरेंट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ब. एक वर्ब फॉर्म में अगर हमने पेरेंट वर्ड को यूज करना हो तो कैसे यूज करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, उसका हम कैसे यूज करते हैं. लाइक द यूसेज हियर इज दे आर टेलिंग अबाउट the usage. All children are special. All children are special to those who parent them. इसका क्या मीनिंग हुआ कि जिन बच्चों को, वो सब बच्चे उनके लिए स्पेशल होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं. पेरेंट देम, उनकी देखभाल करना. अब यहाँ पे दिस मीन्स देखभाल में हम व्हाट वी से bring up, be the parent of, look after, take care, rear, raise, nurture. अब ये डिफरेंट वर्ड्स हैं. rear ये हम नॉर्मल एनिमल्स में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. he reared the cattle, he raised a pet dog, he nurtured the plants. Here we can use a he was the parent to this plant as he nurtured it. इस तरीके से भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट. ही वॉज अ पेरेंट टू दिस प्लांट. डिफरेंट तरीके से हम इस वर्ड को पेरेंट को एज अ वर्ब, एज अ नाउन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. एंड द डिफरेंट वर्ड्स विच वी कैन यूज हियर for the word parent. Bring up, be the parent of, take care of, ये सारे synonyms हैं which we can use in the form of parent अगर हम उसको verb के form में use करते हैं then. ठीक है. So अभी हमने देखा noun and verb form of parent. Now we come to the next word. Next word is environment. This is also a very common word और इस पर बहुत ही essays
भी आते हैं और हमें टॉपिक्स आते हैं स्पीकिंग के लिए भी. नाउ एनवायरनमेंट हम कैसे यूज करते हैं? इन द नाउन फॉर्म वी कैन यूज दिस. एंड अब अगर हम इसको नाउन फॉर्म में यूज करते हैं, देन हाउ डू वी यूज इट? एंड व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स दैट वी कैन यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल यूसेज का एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे कि लाइक द बर्ड्स एंड मैमल्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट्स. एनवायरमेंट का मीनिंग तो सबको पता ही है कि क्या होता है, डिफरेंट हैबिटेट्स. यहाँ पे हमने किस सब उसमें यूज किया कॉन्टेक्स्ट में इसको एज ए हैबिटेट. हैबिटेट, टेरिटरी, डोमेन, होम, अबोर्ड, सराउंडिंग्स, कंडीशंस, एनवायरन्स, सर्कमस्टांसेस. ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अगर हमने उसको यूज करना हो किसी एनवायरनमेंट. जो जैसे इसमें अगर हम यूसेज इसको इस तरीके से करनी हो कि बर्ड्स एंड मैमल्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट, कि डिफरेंट एनवायरनमेंट से जो बर्ड्स एंड मैमल्स हैं उस केस में, या डिफरेंट एनवायरनमेंट के ह्यूमन बीइंग्स हैं उस केस में अगर हमने यूज करना हो, देन वी कैन यूज दीज वर्ड्स ऑल्सो. हैबिटेट, टेरिटरी, like the human beings from the different habitats or from different territory or different abodes, different surroundings, different conditions. We can use those kind of things also in case of environment. ठीक है? Then second type, where we have to say about a situation or a setting. जैसे यूसेज है इसकी, potential hazards in the hospital environment are numerous. अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ? पोटेंशियल हजार्ड्स इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की बात हो रही है कि हॉस्पिटल के अंदर का माहौल जो होता है उसके बहुत सारे नुकसान हैं. अब यहाँ पे माहौल की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को हम यूज कर रहे हैं एज अ बैकग्राउंड और एज अ एनवायरनमेंट, वहाँ उस जगह का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग. जैसे सिचुएशन, अब उस केस में व्हाट वर्ड वी कैन यूज? सिचुएशन, सेटिंग, milieu, medium, background, backdrop, scene, scenario, location, locale, context, framework, sphere. These are so many words. You can just note down all these words. ये हम यूज करते हैं अगर हम किसी जगह के माहौल के बारे में बात करते हैं. उस केस में we use them. We use this word in the noun form, and we can use these different kinds of words for environment. ठीक है? तो अभी हमें कितने वर्ड्स मिल गए यहाँ पे नाउन फॉर्म में? जितने मर्जी हम इसको नोट करके रख सकते हैं. सो देन नेक्स्ट नाउ वेयर वी कम थर्ड तरीके का नाउन फॉर्म अगर हम यूज करते हैं इन द थर्ड फॉर्म. यहाँ पे क्या होता है? इसकी हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरीके से? नेचुरल वर्ल्ड की बात हो रही है सपोज, तो उस केस में वी आर यूजिंग दिस नेचुरल वर्ल्ड या नेचर, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं. यहाँ पे एनवायरनमेंट को हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं. द नेचुरल वर्ल्ड, नेचर, द लिविंग वर्ल्ड, द अर्थ, द इकोसिस्टम, द बायोस्फीयर, मदर नेचर, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, the countryside, the landscape. There are so many different words जो environment को यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं. The usage here is the impact of pesticides on the environment. ये एक सेंटेंस का पार्ट है, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास का नेचुरल वर्ल्ड है उस पे पेस्टिसाइड्स का क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है. अगर हमने वो चीज़ एक्सप्लेन करनी हो, यहाँ पे एनवायरनमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है? हमारे आसपास का जो नेचर है, नेचर के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं. हमारी वाइल्ड लाइफ है, लिविंग वर्ल्ड है, हमारा फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना मीन्स जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं. कंट्री साइड, लैंडस्केप, उस केस में वी आर यूजिंग दिस. अब उसमें डिफरेंट हमारे वर्ड्स हमें बहुत सारे मिल गए. जनरली वी यूज एनवायरनमेंट की
एनवायरनमेंट पे हमें जो आता है कि टुडे nowadays the pollution is increasing and it disturbs the environment. अगर हम ऐसा सेंटेंस लेते हैं तो उस केस में ये यूज होता है यहाँ पर नेचुरल वर्ल्ड, उस केस में वी कैन यूज दीज वर्ड्स. लेकिन अगर वही एनवायरनमेंट हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया कि एनवायरनमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, सेम थिंग वी कैन यूज एनवायरनमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑफ अ कॉलेज, ऑफ द एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी गुड एट माई होम. वो उससे पहले वाले कॉन्टेक्स्ट में था जहां पे हम माहौल की बात कर रहे थे. सो दीज आर द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वेयर वी कैन यूज दीज वर्ड्स. एनवायरनमेंट के हमें डिफरेंट मेथड्स कैसे मिलते हैं. अब एनवायरनमेंट का वर्ब फॉर्म नहीं है कोई, इट इज ओनली इन द नाउन फॉर्म विच इज यूज्ड. सो I have just explained you the different words and the different things that can be used and the usage also, कि हम इनको एज ए नाउन और एज ए वर्ब फॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेसन. आज हमने आपको सिर्फ 3 वर्ड्स बताए. इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट मैं मोटिवेट होके आपको नेक्स्ट वीडियोज भी ऐसे ही टॉपिक्स पर दूं. एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू share this video if you like it. Okay, so please give me comments in the comment section below, because आपके जो ये comments होते हैं इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें फीडबैक भी मिलता है कि हमारी वीडियो अच्छी गई या नहीं गई, या हम क्या इनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.